Okay, so today we are going to solve the true false not given question. We have got four questions, and this is from the passage Raising the Mary Rose, and the passage is of test number 2 of Cambridge 11 book. सो बी विथ मी, यू कैन डू टू थिंग्स हियर. आप दो चीजें कर सकते हो यहाँ पे. अगर आपके पास ये बुक है, बुक नंबर 11, सो अभी वीडियो पॉज करके यू कैन पॉज द वीडियो एंड गेट द बुक कैम्ब्रिज 11 एंड कम डायरेक्टली टू दिस पैसेज पेज नंबर 41. और जैसे जैसे मैं आपको ये ट्रू फॉल्स नॉट गिवन मैं समझाते जाता हूँ, वैसे वैसे आप ट्रू फॉल्स नॉट गिवन करते जाइए. या फिर you can have another choice that everything would come up on your screen. So if you do not have the book, then you can by watching the video you can get the meaning of this true false not given, and that one thing I can guarantee you that you would be having far more better understanding after watching this video. But try to understand whatever I'm saying, and be somewhat patient, that this is not 2 minutes Maggie noodle that by just having few tips and tricks you can get the band score. You need to have deep understanding of vocabulary as well as paraphrasing. So we would start this, and as I have already mentioned in previous video that we have to start from the so I'm not going to those instruction further, but we have to start from the question, not from the passage. If we are reading the questions first, then we must be having something in our mind that what we are looking for in the passage. If we are not reading the questions, then definitely we do not have anything that what we are looking for in the passages. Okay, so there is the first question, and we have to write down true, false, and not given, and not yes to not given. So that is also important. So the first question: there is some doubt about what caused the Mary Rose to sink. So one of the tip video I would make in the coming future, that आपको जब भी ये ट्रू फॉल्स नॉट गिवन या कोई भी क्वेश्चन करने हैं यहाँ पे, तो सबसे पहली चीज होती है कि आपको क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है और यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन होलली. आपको पूरा क्वेश्चन, ऐसे नहीं कि ये मैंने सम, कई बार स्टूडेंट्स को ये एडवाइस मिल रही है कि आपको क्या करना है कि ये सम डाउट, फिर कॉज या मैरी रोज, ऐसा कुछ कीवर्ड वहां पे ढूंढना है. अगर आप ऐसा कर रहे हो तो 100% आपको आंसर नहीं मिलेगा. आपको क्या करना है कि आपको पूरे का पूरा क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है अच्छे तरीके से. ओके, तो यहाँ पे क्या है, देयर इज सम डाउट अबाउट व्हाट कॉज द मैरी रोज टू सिंक. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैरी रोज, ये जो शिप है, वो जब डूबा तो उस जो डूबने की जो घटना है वहां पे सम डाउट है, लोगों को सब कुछ डाउट है वहां पे, बराबर. तो फिर we would come to the question, we would come to the passage raising the Mary Rose, and we would start from the beginning, not from somewhere between where the keywords. That is also the advice we would publish the video, that do not skip the content which do not contain the keyword. कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट स्किप कर देते हैं, वो जो मेन चीज होती है वो स्किप करके डायरेक्ट कीवर्ड्स पे चले जाते हैं और उनको आंसर नहीं मिलता है. ठीक है, तो वी वुड स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. रेजिंग द मैरी रोज. हाउ a 16th century warship was recovered from the seabed. On 19 July 1545, English and French fleets were engaged in a sea battle off the coast of southern England in the area of water called the Solent between Portsmouth and the Isle of Wight. Among the English vessels was a warship by the name of Mary Rose. Built in the Portsmouth some 35 years earlier, she had had a long and successful fighting career and was a favorite of King Henry VIII. Accounts of what happened to the ship vary. Here we can see there is some doubt about what caused the Mary Rose sink. ये यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में, और यहाँ पे पहले ये पढ़िए आप, that accounts of what happened to the ship vary. Here ये vary है VARY, इसका मतलब होता है डिफर, अलग अलग. तो while witnesses agree that she was not hit by the French, some maintain that she was outdated, overladen,
एंड सेलिंग टू लो इन द वाटर। कुछ लोग क्या मानते हैं कि यहाँ पे या तो वो आउटडेटेड था या ओल्ड लेडन था या सेलिंग टू लो इन द वाटर। अदर्स दैट शी वाज मिसहैंडल्ड बाय अनडिसिप्लिन क्रू, के जो कुछ और लोग थे वो क्या मान रहे थे कि जो शिप है वो अनडिसिप्लिन क्रू, उसके जो क्रू था वो अनडिसिप्लिन था, उसके थ्रू वो मेंटेन होता था। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ लोग ये बोल रहे हैं, कुछ लोग वो बोल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट देयर इज सम डाउट अबाउट व्हाट कॉज द मैरी रोज टू सिंक। मीन्स अगर आपने, मैंने थोड़ी देर पहले जो बताया, अगर आप कीवर्ड पकड़ के चल रहे हो तो क्या प्रॉब्लम होगी कि आप यही ढूंढेंगे कि सम डाउट कॉज्ड, सम डाउट कॉज्ड, ऐसा ढूंढेंगे। और ऐसा तो वहां मिलने से रहा, क्योंकि आइल्स के रीडिंग के पैसेज इतने इजी नहीं होते कि हम खाली कीवर्ड पकड़ के उसमें ट्रू फॉल्स नॉट गिवन कर दें। तो यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा पैराफ्रेजिंग किया हुआ है और अच्छी तरह से वो बताने का ट्राई किया है कि वो क्यों लोग इनके बारे में, उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। और यहाँ पे है कि there is some doubt about what caused the Mary Rose to sink. So the answer is true. Okay. The second one, the Mary Rose was the only ship to sink in the Battle of 19 July 1545. And the third one is, most of one side of the Mary Rose lay undamaged under the sea. Then we would again read further. What is undisputed, however, is that Mary Rose sank into the Solent that day, taking at least 500 men with her. After the battle, attempts were made to recover the ship, but these failed. The Mary Rose came to rest on the seabed, lying on her starboard right side or at an angle of approximately 60 degrees. The hull, the body of the ship, acted as a trap for the sand and mud carried by Solent currents. As a result, the starboard side filled rapidly, leaving the export port left side to be eroded by marine organism and mechanical degradation. Because of the way the ship sank, nearly all of the starboard half survived intact. Okay, now अगेन ये जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे कहीं पे भी, और थर्ड क्वेश्चन ये आ रहा है हमारे पास, उसका जो आंसर है यहाँ पे है, बराबर, ऑल ऑफ द स्टारबोर्ड वहां से है। तो इसका अर्थ ये है कि अगर सेकंड क्वेश्चन कहीं पे भी द मैरी रोज वॉज द ओनली शिप टू सिंक इन द बैटल ऑफ जुलाई 1545, इसका आंसर कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि भी मैरी रोज अकेला ऐसा शिप था जो उस बैटल में सिंक हुआ था या नहीं हुआ था, ऐसा कहीं पे भी नहीं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये नॉट गिवन है, क्योंकि हमको थर्ड का आंसर यहाँ पे मिल रहा है, बराबर। अभी I normally, whatever videos I make on Instagram and on YouTube, I would clearly tell to the student that improve your vocabulary. अगर आप vocabulary improve करते हो तो easily आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर कहाँ पे है और क्या है। यहाँ पे देखिए, अगर आपको ये नियरली से पढ़िए आप, नियरली ऑल ऑफ द स्टारबोर्ड हाफ सर्वाइव्ड इंटैक्ट, और आगे दिया हुआ है कि स्टारबोर्ड जो वाला जो पार्ट है वो राइट है और दूसरा वाला पार्ट लेफ्ट है। इंटैक्ट का अर्थ होता है अनडैमेज। अगर कोई भी चीज इंटैक्ट है तो उसका मतलब होता है अनडैमेज। और यहाँ पे क्या लिखा है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, दैट मोस्ट ऑफ वन साइड ऑफ द मैरी रोज ले अनडैमेज अंडर द सी। तो अगर आपको इंटैक्ट इतना पता होगा ना कि इंटैक्ट का अर्थ अनडैमेज है, तो ऑन द स्पॉट आपको आंसर पता चल जाएगा, इसका आंसर होगा ट्रू। सो फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज नॉट गिवन एंड थर्ड इज आल्सो ट्रू। देन फोर्थ वन, Alexander Mackey knew that the wreck would contain many valuable historical objects. Okay, so now what we have to do, we have to find Alexander Mackey, but that does not mean that we can skip the content. We should not skip the content. आपको कंटेंट को डायरेक्ट स्किप करके सीधा अलेक्जेंडर मैकी पे नहीं आ जाना है। आप चाहे तो थोड़ा उसको थोड़ा फास्ट पढ़ लीजिए, तो थोड़े वहां पे क्या है वो आपके दिमाग में रहे और आप सीधे अलेक्जेंडर मैकी पे आ सके, ठीक है। सो 18th century, the entire site became covered with a layer of hard gray clay which minimized further erosion.
Then on 16 June 1836, some fishermen in the Solent found that their equipment was caught on an underwater obstruction which turned out to be the Mary Rose. यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कहीं पे भी अलेक्जेंडर मैकी का इस पैराग्राफ में कहीं भी वो मेंशन नहीं है, तो हम ये पूरा पैराग्राफ नहीं कर रहे, हम केवल ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन कर रहे हैं, तो मैं ये स्किप कर देता हूं। लेकिन आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि जो दूसरे क्वेश्चन है 5 to 8 है या 9 to 13 है, वो वहां पे हो सकते हैं, तो आपको स्किप नहीं करना है, आपको वो पूरा पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे अलेक्जेंडर मैकी लिखा हुआ है, द मैरी रोज 1 2 3rd and 4th पैराग्राफ है। The Mary Rose then faded into obscurity for another 100 years, but in 1965, military historian and amateur diver Alexander Mackey, in conjunction with the British Sub-Aqua Club, initiated a project called Solent Ship. While on paper, this was a plan to examine a number of known wrecks in the Solent, what Mackey really hoped for was to find the Mary Rose. Okay. यहाँ पे आपको लगेगा कि ये नॉट गिवन है, बराबर, क्योंकि आप क्या करोगे, अलेक्जेंडर मैकी आ गया, फिर रैक भी आ गया, और ये मैरी रोज भी आ गया, तो ये आ गया और कुछ मिला नहीं, तो आप क्या सोचोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको कि आपने मोस्ट ऑफ दी जो सोशल मीडिया और यूट्यूब या आपके टीचर्स से यही सुना है कि जहां पे कीवर्ड होगा वहीं पे आंसर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका आंसर आगे आएगा। ऑर्डिनरी सर्च टेक्निक प्रूव अनसेटिस्फैक्टरी, so Mackey entered into collaboration with Harold E. Edgerton, professor of electrical engineering at the Massachusetts Institute of Technology in 1967. Egerton side scan sonar system revealed a large, unusually shaped object which Mackey believed was the Mary Rose. Further excavations revealed stray pieces of timber and iron gun, but the climax to the operation came when on 5th May 1971, part of the ship's frame was uncovered. Mackey and his team not now knew for certain that they had found the wreck, but were as yet unaware that it also housed a treasure trove of beautifully preserved artifacts. ठीक है, यहां पे क्या लिखा है कि Alexander Mackey knew that the wreck would contain many valuable historical objects. Means Alexander Mackey को पता था कि जो वो रैक है, उस रैक में वो कई बहुत सारी वैल्यूएबल चीज मतलब उसके पास अंदर है, वुड कंटेन दिस काइंड ऑफ वैल्यूएबल हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स। और यहां पे क्या है, दैट मैकी एंड हिज टीम नाउ न्यू फॉर सर्टन दैट दे हैड फाउंड द रैक, उनको सर्टन था कि उन्होंने रैक फाउंड कर लिया, बट वेर एज येट अनअवेयर दैट इट ऑल्सो हाउस द ट्रेजर ट्रोव ऑफ ब्यूटीफुली प्रिजर्व्ड आर्टिफैक्ट्स। वो अनअवेयर थे कि वहां पे बहुत सारे हिस्टोरिकल और ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स थे। मींस ये पूरा का पूरा कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तो ये फोर्थ का जो क्वेश्चन जो फोर्थ का आंसर है वो फॉल्स है। तो अगर आप यहाँ पे मैकी जो आपको फोर्थ पैराग्राफ में अगर अलेक्जेंडर मैकी दिखा है और वहीं पे सोच के आप अगर आपका आंसर लिखोगे कि ये ट्रू या फॉल्स, तो दिख नहीं रहे हमें कहीं पे भी, तो हम नॉट गिवन लिख देंगे, क्योंकि आपको कहीं से भी यही इंस्ट्रक्शन या सुनने को मिला है कि आपको जहां कीवर्ड दिखे वहीं पे मतलब कि वो आंसर होना चाहिए। लेकिन आइल्स रीडिंग पैसेज में ऐसा नहीं होता है। आइल्स रीडिंग पैसेज में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो थोड़ी डीप होती है, हमको पढ़ना पड़े, पूरे का पूरा पैसेज पढ़े बिना। वो सेकंड वाला जो क्वेश्चन था वो हमने क्यों नॉट गिवन बताया, क्योंकि उसके आगे थर्ड वाला हमको मिल गया था। और फोर्थ वाले क्वेश्चन में जब तक अलेक्जेंडर मैकी आता रहेगा तब तक हमको वहां पे पढ़ना पड़ेगा, तो ही हम उसको ट्रू फॉल्स या नॉट गिवन में भेज सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है या नॉट गिवन है। सो दिस इज द एंड ऑफ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन सॉल्यूशन ऑफ raising the Mary Rose. We are not doing 5th to 13 because right now we are only concentrating on true, false and not given. Hope you found this video well, and if you have got any confusion then कमेंट में आप हमें बताइए। आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो हम वो सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, और ऐसे रीडिंग के सॉल्यूशन हम रेगुलर बेस पे अभी अपलोड करने वाले हैं। तो यू कैन जॉइन अस, यू कैन फॉलो अस एंड यू कैन बी हैविंग द रेगुलर अपडेट अबाउट हाउ टू improve your reading score in IELTS exam.